एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो मैंने अपना रिसेंट वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग द लाइव मॉक टेस्ट एनालिसिस, तो उसमें बहुत सारे लोगों को इंग्लिश के सेक्शन को लेकर कुछ डाउट्स आ रहे थे और बहुत सारे लोगों ने इंसिस्ट किया था कि मैं अपनी जो इंग्लिश की मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है उसको आप सभी के साथ शेयर करूं। तो आज मैं यहाँ पर एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक आप सभी के साथ मतलब लाइव ही सॉल्व करूँगी और उसमें आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करती हूँ और क्या माइंडसेट मेरा रहता है। ठीक है, मॉक अभी मैंने भी नहीं देखा है, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं कि कैसा जाता है। Okay, so without any further delay, I will start the mock. Okay, so ये first question है error detection का maybe. I will attempt it, the partner. इसमें से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। There is no explanation here. बैगेजेस नहीं होता, द एनी नहीं, रिटर्न नन ऑफ द के साथ इज आता है। पैरा जंगल लास्ट में। Trained benefit of it. Treated कॉलम तुरंत करती हूँ मैं। ए ई किस में है? सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ओके, नाउ विल चेक सी। CT and AE, I guess so. AE अभी BD चेक करती हूँ। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग द पैटर्न रूल्स
मेरी भी ठीक लग रहा है, ए भी ठीक लग रहा है। ये एक बार और चेक कर लेती हूँ। द वेल साउंड ऑफ द सायरन्स, हाँ ठीक है। व्हाट्सएप, मैंने आपसे बोला था वोकैबुलरी। He came slowly up to the open door, which was ठीक है. Recently examined 2 decades of culture transitions and upon the focus on the general status of women and attitudes towards marriage toward the real estate market. We recently examined, सही है, cultural transition in Hong Kong with a focus on how changing status of women and attitudes transition. PC का दिया हुआ है क्या? Alter the no change required. How we है तो इसके बाद कोई वर्ब आना चाहिए. Speak off the cuff, AC, can have a bigger impact on our career trajectory than our presentation or speeches, because every single day we have an opportunity to make an impact. DE and AC. Okay. RC लास्ट में. वोकैबुलरी तुरंत. But viable I guess. Feasible synonym. Drop, correctly used. After reviewing the new evidence, the prosecutor decided to drop the case against the defendant. A single logo frame. The drop down menu on the website is easy to drop the case against. Case drop. नहीं, अभी डाउट है. Clip. The clipped tone of his response indicated he was upset. She watched a short clip from the movie Titanic. He accidentally clipped his tooth while eating a hard piece. Clipped tone of his. All सही लग रहा है. Charge. The charge for her service was higher than expected. They decided to charge him with the responsibility of leading the project. He was caught when the bank discovered he had charged a signature. First and second. The central monitoring government could write informing the subject project matter and communication in really time नहीं होता, in real time. The Abel Prize in Mathematics was on Tuesday awarded to the Korean, the first woman to win the award. The first woman एक है ना, ठीक है. ओके, सो अभी आरसी पे जाते हैं ना. व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म. अब आरसी में जो क्वेश्चन वन लाइनर्स वाले हैं, मतलब डायरेक्ट मिल सकता है, उसको डायरेक्ट ऐसे ही देखते हैं पैराग्राफ में. प्राइमरी मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग डाइट सिविलिटी टू डिसीज. I'm searching for the word Caesars. यहाँ पे है. Over time, imperial evidence supported the efficiency of ketogenic diet and its ability to modulate neuronal accessibility and stabilize neural networks. Accessibility, देखो, adjustment of ability to stabilize neural networks, neural accessibility. Decrease ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, अवेलेबल है ना. Okay, what is the primary role of ketone bodies in the ketogenic diet? Ketone body.
टाइम अभी 10 मिनट्स हैं. I'm searching for the word ketone bodies. कुछ मिस कर दिया. प्राइमरी रोल ऑफ कीटोन बॉडीज इन कीटोजेनिक डाइट. Ketone bodies, through the breakdown of fats, the brain receive an alternate energy source. Act as a substitute energy source. How does the ketogenic diet benefit individuals with type 2 diabetes? और type 2 diabetes easily मिल जाएगा. ये तो कीवर्ड है गेस. टाइप 2. By a favorable change in metabolic biochemistry, reduce blood glucose by lowering blood glucose and insulin levels. Difficulties can ये 2-3 वाला है. हाँ ये बना. Followed by what promoted the initial emergence of. But as a therapeutic intervention for epilepsy in children. ठीक है, तो सिंपल वाले क्वेश्चन तो हो गए इसके. अब इसमें ना चलो एक बार देख लेते हैं. वो डिफिकल्टीज इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ कीटोजेनिक डाइट. ये कहीं एंड में होना चाहिए क्योंकि पूरा तो हो गया. हम लोगों ने अच्छी चीज़ें तो देख ही ली थी. However, it's imperative to note it is not divided. They may face digestive issues. Gastrointestinal discomfort. हाँ, digestive issues में आ जाएगा. They may encounter respiratory problems. Long term also cardiovascular health. ये भी हो सकता है. Or they may experience insufficiency of vital nutrients. हाँ सारी हो सकती है मेरी वजह तो इसमें तो फिर नहीं कुछ गलत हो गया. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं, कार्डियोवास्कुलर था ना. यही है. सावधानी हटी दुर्घटना घटी. Renal function 1 and 3rd. अब डाउट हो गया. एक बार फंस जाता है ना तो फिर हो जाता. चलो बट कोई नहीं, इतना नहीं सोच रहा. फिर अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इफेक्ट्स व्हाट एडिशनल बेनिफिट्स हैं. एडिशनल में तो था स्टार्टिंग में होगा. ये बियॉन्ड वेट मैनेजमेंट, मेटाबॉलिक हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट कार्बोहाइड्रेट इम्प्रूव satiety and also greater possession of lean body mass, that the changes in कहीं पर ऐसा कुछ खास मेंशन तो नहीं है. ये बियॉन्ड
थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है। नहीं करूँगी यार, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब चलो देखते हैं, पैराजम्बल मेरा वीक है, देखती हूँ अगर समझ आया तो, नहीं तो फिर जितना करो एक्यूरेसी के साथ। ये ई और सी का थोड़ा सा कनेक्शन दिख रहा है कि ई में बोल रहा है कि इतने टन सॉयल नियरली 10 हेक्टेयर इरोजन से लॉस्ट हो गया, अनदर 20 मीटर 20 हेक्टेयर समथिंग है। तो मुझे लगता है ई और सी का तो एक पेयर है। लैंड का कुछ था, फूड प्रोडक्शन विल हैव टू इंक्रीज 40% जस्ट 11% ऑफ द लैंड। कुछ अलग है, बी और डी में कुछ कनेक्शन लग रहा है। डी, हाँ डी पहले आएगा। विद इन 40 years देयर विल बी around 2 billion more people and other China plus India on earth, and being saying there is little new land that can be brought into production and existing land is being lost and endangered. बी के बाद फिर ए इनकी food production will have to increase at least 40%. Most of it is going to the size that were just 11% of the global land surface. सबसे पहला डी हो सकता है कि विदिन 50 डी बी ए नहीं आई डोंट नो सही होगा कि नहीं। मेरा पैराजम्बल नहीं ठीक है, और इसमें है बहुत सारे मार्क्स में पैराजम्बल नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं। ओके मुझे लगता है ठीक ही है। पेयर टाइप के क्वेश्चन मिल जाता तो चेक हो जाता। एक बार चेक कर लूँ मार्क्स सही किया। फर्स्ट इज टी, फोर्थ इज ई, थर्ड इज पी, सी। आई थिंक आई एम डन विद इट। जो 2 क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है, हालांकि अभी 2 मिनट हैं, पर गलत हो जाएगा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। मसल मास, लीन बॉडी मास, वर्ड्स थोड़े से। सैटिटी, अच्छा सेकंड तो है, इम्प्रूव्ड सैटिटी, कुछ क्लियर लिखा तो है कम से कम। इनहेंस्ड फैट, ग्रेटर कंजम्पशन, लीन बॉडी मास, मसल मास। सेकंड, ओनली सेकंड दिया तो हुआ है। क्या करूँ, केवल ओनली 2 के साथ जाऊँ? लग तो यही रहा है।
थर्ड तो बिल्कुल नहीं है। लीन बॉडी मास और मसल मास मुझे डाउट हो रहा है। बेटर सिट्यूटी नहीं करूँगी, देखा जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको सबमिट कहाँ से करना है? ऑप्शन नहीं है, टाइम होने पे सबमिट हो जाएगा। देखते हैं कैसा रहता है। पैरा जंबल में ही डर लग रहा है, पेपर में भी ऐसे ही। लेट्स सी। ओके, क्या गलत करती हैं तो मॉडरेट लेवल था तो गलत होना ही था मेरा। फिर क्या था? रेडी टू हियर इट। बाद में एनालिसिस करूँगी, अब भी आपसे कुछ बात भी करनी है। ठीक है, तो ऑल ओवर ये रहता है, मतलब मेरा अटेम्प्टिंग का तरीका आपने समझा ही होगा। आरसी अगर मतलब ऐसा होता है कि पूरी रीड एक साथ कर लूँ और क्वेश्चन सारे समझ रहे हैं ना, मुझे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अलग अलग दिख रहे थे और कीवर्ड बहुत इजीली दिख रहे थे, तो मैंने डायरेक्टली कीवर्ड से ही इसको सर्च कर लिया। हालांकि रियल एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो थोड़ी सी क्वेश्चंस उसमें ना दिखते नहीं है क्लियरली। अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही हुआ था कि मेरा जो ना टाइम इसी वजह से कम हो गया था। उप्स, मैंने कट कर दिया क्या? नहीं, फिर से क्या हो रहा है, एक सेकेंड। तो जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम था, हाँ अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम था उसमें मेरे साथ यही हुआ था कि मतलब क्वेश्चंस जो थे वो स्क्रीन कंप्यूटर की थोड़ी सी वैसी होती है, तो हमको बार बार माउस से एक तो उसको स्लाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आरसी में टाइम कम हो जाता है आई गेस। बट मुझे लगता है कि ये जिस तरह से मैंने किया इस टाइम लिमिट में, टाइम तो मेरा सब टाइम के अंदर हो गया। ठीक है, पैराजंबल में मुझे डाउट लग रहा था, बट पैराजंबल जब मैंने पूरा पढ़ा अच्छे से, तो आप जब 2-3 बार पढ़ लेते हो और आपके पास टाइम बचता है स्पेशली। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने कि मुझे पता था कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या हैं, मुझे एरर डिटेक्शन, वो कैप्स के जो भी क्वेश्चन थे वो मुझे पता है ना कि हाँ ये मेरे से बन जाएंगे। तो अगर आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता हैं और आप उस पर पहले जल्दी जल्दी टिक 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 करते गए, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा तो है नहीं कुछ सॉल्व करना है, पैराजंबल में ही थोड़ा सा उस तरीके का होता है, तो उसको एंड में आप रख सकते हैं। अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो आपने देखा ही, तो इसीलिए तो मेरा मतलब यही कहना है कि आप लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अपने फाइंड आउट करिए इंग्लिश में और जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करने का एटलीस्ट ट्राई करिए। वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास बहुत अच्छे से टाइम बचता है। मेरे पास इतना 10 मिनट 11 मिनट टाइम बचा। अब मुझे अगर आरसी पूरी भी पढ़नी होती तब भी कोई इशू नहीं था। ठीक है, और अभी मेरा जो थोड़ा सा इस तरह से जैसे मैंने किया, आई थिंक थोड़ा अनप्रोफेशनल लग सकता है, बट होता क्या है ना कि अगर आप एक साथ सारे वर्ड्स लिख भी लेते हो तब भी आपको बार बार पैराग्राफ में ही ढूंढना पड़ेगा, और पूरी आरसी रीड करके याद तो, क्योंकि फैक्चुअल भी चीज़ें थी ना, थोड़ी साइंटिफिक वर्ड्स थे, तो उनको आप याद तो इतना माइंड में नहीं रख सकते, मतलब मैं अपने लिए बोल रही हूँ। हाँ, तो इसलिए ये आरसी की अप्रोच तो मेरी यही रहती है। मेंस में इससे अच्छा हो जाता है, क्योंकि मैंने जब दिया था क्लर्क मेंस को तो मेरा इंग्लिश का सेक्शन बहुत अच्छा गया था। तो मेंस में क्योंकि टाइम होता है तो इसलिए आप अच्छे से कर सकते हैं। प्रीलिम्स में भी अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग से मैनेज करके रखा था, लेवल इसका आपको मतलब बहुत इजी तो नहीं लगा, क्योंकि मुझे लास्ट मॉक में लगा था कि काफ़ी इजी वाले मॉक का कुछ एनालिसिस हो गया करके, तो मैंने इस बार ऑलिव वुड का इसीलिए पिक किया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि मतलब वो उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है इंग्लिश में बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो अभी इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए मल्टीपल टाइम्स। रूल्स भी अगर आपने पढ़े हैं तो रिवीजन कीजिए। इम्प्लीमेंटेशन आपका तभी हो पाएगा ना जब आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जैसे कि निमिषा मैम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर कितनी सारी वीडियोज़, मतलब आपको हर टॉपिक की 10-10 घंटे की 12-12 घंटे की वीडियोज़ मिल रही हैं। आप पूरी मत कीजिए, बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको देखना है कि रूल्स मेरे कैसे जा रहे हैं, मुझे वो कैप कैसी याद है, तो आप एटलीस्ट 1-1 घंटा तो देखिए उनको। और बाकी वरुण चित्रा सर जो हैं इस टाइम वो मैराथन्स ले रहे हैं IBPS PO प्रीलिम्स की, उनके चैनल पे कंसिस्टेंटली मतलब वो क्लास अपलोड करते हैं, वो लाइव आते हैं, तो अगर आप उनको अटेंड करेंगे और ये सब जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रैक्टिस के लिए आप वीडियोज़ जो अपलोडेड हैं वो देख सकते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है ना, आप कितना भी पढ़ेंगे वो कैब्स ख़त्म नहीं होती। हालांकि पेपर में कुछ सर्टेन आती हैं और उस हिसाब से टीचर्स पढ़ाते भी हैं, तो जैसे कि अभी मैंने जितनी भी वो कैब की ठीक गई, इसलिए क्योंकि मैं एडिटोरियल बहुत रेगुलरली करती हूँ, मतलब मैं एक भी दिन नहीं मिस करती हूँ। और ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है अभी तक मॉक में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है जो एडिटोरियल में मैंने नहीं देखा है।
तो अगर आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट बिल्कुल ही मिलेगा। और प्रैक्टिस के लिए मैंने जो बताए हैं सोर्सेज, आपको वरुण चित्रा सर की लाइव क्लास अगर आपको अटेंड करनी है, मैराथन्स चल रही है, अटेंड कीजिए। अगर आपको वीडियो सोर्स से करना है तो यूट्यूब पे निमिषा मैम के सारे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे आपको, जिस टॉपिक में इशू है उसको सर्च कीजिए, उससे करिए। और बाकी रही मॉक अटैम्प्ट की बात, तो मैंने अभी आज आपको अपनी स्ट्रैटेजी दिखा दी। मे बी इट कैन हेल्प यू। तो थोड़ा सा आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा अब कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, तभी आप उनको पहले करके अपना टाइम सेव कर पाओगे। सो दैट्स ऑल गाइज, एंड आई थिंक इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी, इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और अगर अभी भी कोई आपको डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप करिएगा, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और बाकी रिसोर्सेज और टीचर्स तो मुझे मतलब मेरे एंड से मैं बताऊँ तो मुझे निमिषा मैम और वरुण सर बहुत से अच्छे लगते हैं। आप उनसे पढ़ के देखिए। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी सेक्शनल मॉक ले सकते हैं, कोई भी लाइव मॉक में भी इंग्लिश ठीक आती है, आप उससे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश का यही रूल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो दैट्स ऑल गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।